Hello friends, Satish Tiwari here from Ethical Hacking Tuition Center Jaipur, and you guys are watching my YouTube channel /root.in. So today this tutorial is simply about how to install Red Hat Linux inside your VirtualBox in graphical mode. Okay, so you can see this is my Windows 10 machine, and inside my Windows 10 machine I have installed VirtualBox software. So this is my VirtualBox software. Now inside this VirtualBox I want to install a Red Hat Enterprise Linux in the GUI mode, graphical interface mode. Very simple. Just click on new, just click Red Hat here, Red Hat GUI, and I have 32-bit so architecture, so I will select Red Hat 32-bit. Click on next. Okay, so you can allot RAM as much you want, so 4 GB is more than enough. Just click on next, create, next, next. By default the disk size is 8 GB. We have to allow at least 18 GB, so select 18 GB, then click on create. Now go to settings, make 3 changes. First, in the system, remove the floppy drive, make hard disk first bootable device. Don't forget to make these changes. Okay, then go to storage, click on empty, click on this DVD icon, choose the first option. Now go to the file where you have downloaded the ISO file, where we have kept the ISO file. Okay, so मुझे उस डायरेक्टरी में जाना होगा where I have stored the ISO file. So let me see where I have stored my ISO file. F drive, okay, F drive. So go inside the ISO folder, and here I have RCL5 ISO file. So I selected the RCL5, then click on open, click on OK. One more suggestion, go to network. By default it is NAT, network address translation. Okay, so you have to select bridge adapter so that your virtual machine, your Red Hat Linux machine, can communicate with all other devices connected with your Wi-Fi devices. Okay, click on OK. Now start the installation, click on start in my this one. Okay, now wait. Okay, so you can see installation started. Now just if you want to maximize, you go to view, scale mode, switch. Okay, maximize. Now just press enter here and wait. I'm just showing you how to install Red Hat Enterprise Linux inside VirtualBox in GUI mode, graphical interface mode. Okay, see, very simple one. Skip this. So if the type key, skip, enter. Okay, now you can use your mouse. Okay, I click on next, next, next. Asking for installation number, skip. Okay, skip, yes. Now create the custom layout for partition, disk partitioning. Click on next, select the free device, click a new partition, so select new, then from here select slash and give the size up to 16 GB. Okay, click on OK. Now click on new and click here on the swap. So swap memory is virtual RAM, so give it at least 2 GB. So 2 GB virtual RAM. Click on OK, then click on next, next, next. Now select your time zone. I am from India, so I will select India, Kolkata. Okay, so Asia, Kolkata time zone. Okay, now click on next. Now by default every Linux machine has root user. Root is like admin. Root is admin in the Linux operating system. So by default root is already there. You just have to assign password. Let's assign password Red Hat. Red Hat. You can assign any at least 6 digit password. Okay, then click on next. Then click on next.
ओके, आई एम नॉट गोइंग टू रिज्यूम एनीथिंग। मैं यहाँ पे कुछ भी इस अपना पॉज नहीं करूँगा। ओके, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट हियर and this installation will take 2 to 3 minutes depending on your RAM, how much RAM in your system, which processor you are using. So it's completely depending on your hardware configuration. So my system is Core i7 and 16 GB RAM. So it will take 3 minutes approx, 3 to 4 minutes in graphical mode and 1 minute in text mode, CLI mode. ओके, सो इंस्टॉलेशन स्टार्टेड। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। 4 से 5 मिनट का समय लगेगा ग्राफिकल इंस्टॉलेशन में। मैं कुछ भी स्किप नहीं करूँगा। अगर किसी को यहाँ पे भगाना चाहता है कोई, तो ये भगाकर वीडियो को स्किप करके देख सकता है, थोड़ा आगे भगाकर। मैं नहीं भगाऊँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ एरर आ गया सर, इंस्टॉलेशन टाइम में मेरा ये एरर आ गया। तो अगर आपका कुछ भी एरर आया तो वो एरर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मेरे सिस्टम में कोई एरर नहीं आएगा, इसलिए मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करता, कुछ भी पॉज नहीं करता। तो आप देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, 4 मिनट का वीडियो है। आप चाहो तो देख सकते हो, अगर आप नहीं देख सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप भगा कर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको आकर देखना पड़ेगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी कंप्लीट आपकी चॉइस है। आप देखना चाहो देखो, नहीं देखना चाहो मत देखो, आपकी मर्जी। मैं तो स्किप नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे यूजर है बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम आ गई, हमारे इंस्टॉलेशन में ये एरर आ रहा। मैं नहीं चाहता कि वापस ऐसा कुछ भी एरर आए किसी के साथ, ठीक है। अच्छा, इस रेडिट लाइनस का ये ग्राफिकल वर्जन इंस्टॉलेशन के बाद मैं एक टेस्ट वर्जन इंस्टॉलेशन भी दिखाऊंगा आपको कि रेडिट लाइनस को टेक्स्ट मोड में कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। वो इंस्टॉलेशन भी बहुत कम समय लगेगा। चलो लगे हाथ वो भी कर देते हैं। जब तक ये ग्राफिकल मोड हो रहा है तब तक टेक्स्ट मोड भी कर देते हैं। तो ये रहा वर्चुअल बॉक्स। यहाँ पर गए न्यू पे, वापस यहाँ पर टाइप करते हैं रेड हैट, टाइप करते हैं CLI कमांड लाइन इंटरफेस। कितने बीट? 32 बीट, क्योंकि मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बीट का है। सिलेक्ट ऑन नेक्स्ट। रैम 1 GB, यस 1 GB भी काफ़ी है, 2 GB ले लेते हैं, ठीक है। क्रिएट, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये डिस्क स्पेस एटलीस्ट 18 GB देते हैं, क्रिएट। सेटिंग में जाएंगे, वही 3 चेंजेस करने पड़ेंगे। सिस्टम में जाकर रिमूव द फ्लॉपी ड्राइव, मेक हार्ड डिस्क फर्स्ट बूटेबल डिवाइस, गो टू स्टोरेज, क्लिक ऑन एम्प्टी, क्लिक हियर, चूज दिस ऑप्शन, choose the ISO file, where is your ISO file? RHEL5, so RHEL5 इसको चूज कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, ओके। नाउ गो टू द नेटवर्क, सेलेक्ट द ब्रिज अडेप्टर हियर, ओके, क्लिक ऑन ओके, दैट्स ऑल। क्लिक ऑन स्टार्ट एंड इंस्टॉलेशन विल स्टार्टेड। तो मैं अभी रेडेट्स कमांड लाइन भी इंस्टॉलेशन भी साथ में स्टार्ट कर देता हूँ पैरेलल में। ध्यान रखना, आपको कमांड लाइन इंस्टॉलेशन करना आपको, तो उसमें आपको एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको? कि यहाँ पे आप को टाइप करना पड़ेगा लिनक्स स्पेस टेक्स्ट, ओके। नीचे में बूट के बाद लिनक्स स्पेस टेक्स्ट, यू हैव टू टाइप दिस वन एंड देन प्रेस इंटर। एंड नाउ फॉरगेट द माउस, बिकॉज माउस विल नॉट वर्क इन टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड में माउस काम नहीं करेगा, ओनली कीबोर्ड विल वर्क, ओके। सिर्फ कीबोर्ड काम करेगा। सो इसको भी देखते हैं। तो चलो पैरेलल में दोनों को देखते हैं। अभी हमारा दोनों इंस्टॉलेशन चल रहा है। ये हमारा GUI चल रहा है इधर, ठीक है, और एक साइड में GUI और एक साइड में CLI। तो दोनों को रखते हैं इधर। लेफ्ट हैंड साइड में GUI को रख दिया। ये इंस्टॉलेशन में 2 मिनट टाइम लगेगा, और तब तक हम लोग ये CLI पे काम करते हैं। तब तक मैं आपको ये दिखाता हूँ CLI कैसे इंस्टॉल होता है, क्या सेटअप करना है, इसमें क्या क्या चीज़ दिखना है। तो ये CD फाउंड बोल रहा है आप CD टेस्ट करने के लिए। CD टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्चुअल OS, हमने वर्चुअल इमेज लगाया है, कोई रियल का CD नहीं है कि उसमें कोई स्क्रैच आया होगा। तो नोट CD टेस्टिंग, ओके। जस्ट स्किप इट, प्रेस इंटर। क्लिक ऑन ओके, ओके। टाइप किसे ओके बगैर इंटर मारा। यहाँ से इंस्टॉलेशन नंबर मांग रहा है, इसको स्किप करना पड़ेगा, बिकॉज रेडेट इज फ्री फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड रिसर्च वर्क, सो यू कैन स्किप दिस। देन क्लिक ऑन ओके, प्रेस इंटर, क्लिक ऑन स्किप, प्रेस इंटर, क्लिक ऑन यस, प्रेस इंटर। Now it's asking for the partitions. Select the create custom layout using downside arrow key, then go to OK, press enter, go to new, create enter. Now mount point, press slash forward slash, okay, and then go to size and then make it 16 GB, so 16,000 MB. Then just go to that OK button and click enter. Go to OK button and click enter. Yes, enter. OK, enter. OK, enter.
we are not going to give grub password here. Okay, if you want you can give, okay, but it's not necessary. So just go to OK, press enter, go to OK, press enter, go to OK, press enter. It's asking configure network interface. Yes, of course I want to configure network interface because I want this virtual machine to communicate with my other machines. Okay, so just click on yes. By default there is no support for IP version 4 and IP version 6. I want the support for IP version 4 and IP version 6. So I want to enable the driver for both IP version 4 as well as IP version 6. So just use your arrow key, go downside, press space key. Use arrow key, go downside, press space key. Then go to OK, press enter. Go to OK, press enter. OK, press enter. OK, press enter. Now it's time zone. So from here you have to select your time zone according to your country. So mine is Asia Kolkata. So I will select from here Asia. Okay, is Asia Kolkata. Then go to OK, press enter. Asking root password. You know, you have to assign root password. I am assigning Red Hat. Red Hat. Go to OK, press enter. Now remember, this installation will take minimum at least 2 minutes. Okay, so it will take 2 minutes or less than 2 minutes, and within 2 minutes this Linux system will be installed because this is CLI mode and CLI mode will take less time than GUI mode. अब चलते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखिए ग्राफिकल मोड हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है और ये रीबूट मांग रहा है, तो रीबूट पर क्लिक कर देंगे कि भाई रिस्टार्ट करो। और तब तक ये देख सकते हो कि हमारा इधर का इंस्टॉलेशन चल रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हम ओके कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का इंस्टॉलेशन चल रहा है जो CLI मोड है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ग्राफिकल मोड बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है, रेडी हो रहा है। ठीक है, तो ये जब तक चल रहा है इसको वैसे रहने देते हैं और अब थोड़ा फोकस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो GUI मोड में हमने इंस्टॉलेशन किया। तो एक ही वीडियो में हमने देखा रेड हैट का CLI मोड इंस्टॉलेशन एज वेल एज ग्राफिकल मोड इंस्टॉलेशन, दोनों मोड का इंस्टॉलेशन हम लोग कर लेंगे। बहुत ईजी है, मैं स्टेप वाइज सारे लैब डालने वाला हूँ, उबुंटू लाइनेक्स, काली लाइनेक्स, ठीक है, जितने भी लाइनेक्स है सबका सेटअप बताऊँगा, कैसे सबको सेटअप करना है, कैसे सबको यूज़ करना है। ठीक है, इसको सबको यूटिलाइज कैसे करना है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में GUI मोड में ग्राफिकल मोड में लाइनेक्स खुल रहा है, क्योंकि मैंने ग्राफिकल मोड में इंस्टॉलेशन किया है तो आपको ग्राफिकल मोड में लाइनेक्स दिख जाएगा। जबकि राइट हैंड साइड में मैं CLI मोड में यानी टेक्स्ट मोड में इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, जिसमें ग्राफिक्स नहीं आएगा, सिर्फ कमांड लाइन होगा, बाकी सारे फंक्शन एज इट इज़ काम करेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। आपको दिख रहा होगा वेलकम मैसेज, जस्ट क्लिक करना है फॉरवर्ड बटन पे, फॉरवर्ड करो, यहाँ से यस एग्री लाइसेंस एग्रीमेंट यस करना है। फायरवॉल को आप इनेबल करना चाहो इनेबल करो, डिसेबल करना चाहो डिसेबल कर दो। चलो मैं डिसेबल कर देता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे यस कर देते हैं। AC लाइनेक्स सिक्योरिटी इनहेंस लाइनेक्स 3 मोड में काम करता है। इनफोर्सिंग परमिसिव डिसेबल्ड, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए परमिसिव ज़्यादा बेटर होता है, तो परमिसिव सिलेक्ट करना, फॉरवर्ड कर देना। केडम कर्नल क्रैश के लिए होता है, इसको इनेबल नहीं करेंगे हम लोग, काफ़ी रैम कंज्यूम करेगा। फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डू यू वांट टू रजिस्टर्ड विथ RHN? नो, अभी रजिस्टर नहीं करेंगे। नो, आई प्रेफर टू रजिस्टर एट लेटर टाइम, ये सिलेक्ट करना आपको ऑप्शन। क्लिक ऑन फॉरवर्ड। नो थैंक्स, आई विल कनेक्ट लेटर। फॉरवर्ड। नो नीड टू क्रिएट सेपरेट यूजर, यू ऑलरेडी हैव रूट यूजर, सो जस्ट क्लिक ऑन फॉरवर्ड, कंटिन्यू, फॉरवर्ड, फिनिश एंड डन। योर Linux मशीन इज रेडी। नाउ यू कैन लॉग इन योर ग्राफिकल मोड। ओके, आप ग्राफिकल मोड में Linux में लॉगिन कर सकते हो। तो मैं लॉगिन करता हूँ रूट यूजर से, रूट यूजर नेम, रूट पासवर्ड रेड हैट, एंटर, एंड यू कैन सी आई एम लॉगिन टू माई रेड हैट Linux मशीन। ये मेरा रेड हैट Linux मशीन का ग्राफिकल वर्जन है। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आप ओपन टर्मिनल को क्लिक कर सकते हो और इस टर्मिनल में काम कर सकते हो। IP एड्रेस चेक करना हो तो इफ कन्फिग कमांड से IP एड्रेस भी चेक कर सकते हो। इसको IP एड्रेस मिल चुका है, यू गो टू द IP एड्रेस हियर 192.168.29.234। ओके, नाउ इफ यू वांट टू शट डाउन दिस मशीन जस्ट टाइप init space 0, दैट्स ऑल, दिस मशीन विल शट डाउन। ओके, तो जब तक ये शट डाउन होता है वी विल लुक आफ्टर दिस वन कमांड लाइन मोड।
अब चलते हैं कमांड लाइन टेस्ट इंस्टॉलेशन, जो हमने CLI मोड में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कमांड लाइन इंटरफेस में इंस्टॉलेशन चल रहा है रेड हैट का। ये 66% हो चुका है। 2 मिनट समय लेगा टोटल, 2 से 2.5 मिनट, क्योंकि 2 मशीन एक साथ चल रही थी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। बट जैसे ही वो शट डाउन होगा, ये जैसे ही शट डाउन होगा ग्राफिकल मोड, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो वो शट डाउन हो गया, अब इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसको फुल प्रोसेसिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये भी 72% इंस्टॉल हो चुका। नीचे वाला आप देखो, जस्ट लुक आफ्टर द बिलो बटन, इफ यू सी 73% इंस्टॉल्ड, तो 17%, 27% रिमेनिंग, 27% और बाकी है, 26% बाकी, 25% से विद इन 1 मिनट ये हो जाएगा। SSD हार्ड डिस्क हो, जितना SSD हार्ड डिस्क होगा उतना फास्ट होगा। SSD हार्ड डिस्क हो, रैम अच्छा हो आपके पास, प्रोसेसर अच्छा हो, तो उतना ही फास्ट होगा। जैसे लेटेस्ट मदरबोर्ड हुआ आपका एटलीस्ट कम से कम 12,000 बजट का, कोर i7 हुआ आपका 9 जनरेशन या 10 जनरेशन, तो समझो तो 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा आपका इंस्टॉलेशन। और 16 GB से 32 GB रैम हुआ तो और पहले हो जाएगा आपका। ठीक है, SSD हार्ड डिस्क हो सैमसंग का, मस्त मक्खन चलेगा ये। और टेक्स्ट मोड इंस्टॉलेशन के लिए, लाइनेज के लिए, ये 256 MB रैम में भी मस्त चलता ही है। ठीक है, तो इसको 256 MB रैम में भी आप इस लाइनेज को चला सकते हो एज इजीली, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप लोग इंस्टॉलेशन प्रॉपर वे में करो, ताकि आगे के जो वीडियोज़ है वो आप समझ सको। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, जस्ट आस्किंग फॉर रिबूट, सो जस्ट प्रेस इंटर and the system will reboot. Once it will reboot, I just need to log in with the root user, root and the password Red Hat. Let's wait and watch. तो ये फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है। फर्स्ट टाइम बूट होते समय एक पॉपअप विंडोज खुलेगा, उसको आपको कुछ नहीं करना, एग्जिट कर देना, जस्ट यू हैव टू सिंपली एग्जिट and it will only ask for the first time. Next time, next reboot it will not ask any such options. Okay, तो पहले बार जब लाइनक्स मशीन रिबूट करेगा, आपका बूट करेगा, तो वहाँ पे आपको एक सिस्टम ऑन होने से पहले एक पॉपअप विंडो दिखेगा जिसमें कुछ ऑप्शंस पूछेंगे। उसको आपको क्या करना है, एग्जिट कर देना सिंपली एंड लॉगिन करना लाइनक्स मशीन में, वहीं रूट यूजर से, जो भी आपने यूजर क्रिएट कर रखा है, या आपने कोई नॉर्मल यूजर क्रिएट कर रखा तो उससे भी। तो चलिए देखते हैं और वेट करते हैं उस पॉपअप विंडोज़ का, वो आने ही वाला है अभी। ये देखिए, ये पॉपअप विंडोज़ खुल गया जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन सेटअप करने के लिए बोल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, टैब की से एग्जिट पे जाना है, इंटर मार देना है, दैट्स ऑल। नाउ इट्स आस्किंग फॉर लॉगिन नेम इज रूट, पासवर्ड इज रेड हैट, आप लॉगिन कर सकते हो। नाउ इफ यू वांट टू कंफर्म हु इज लॉगिन, यू जस्ट टाइप हु एम आई एंड यू कैन सी रूट यूजर लॉगिन। जब आपको ये हैश दिखे समझ जाओ रूट से लॉगिन हो। आईपी चेक करना हो, आईपी एड्रेस मिला कि नहीं मिला, इफ कन्फिग कमांड, सो यू कैन सी 192.168.29.232 इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है। तो इस सिस्टम का आईपी एड्रेस भी आप पता कर सकते हो। किस टर्मिनल पे काम कर रहे हो, TTY टर्मिनल 1, डेव TTY 1 मीन्स यू आर वर्किंग ऑन टर्मिनल 1। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम टर्मिनल 1 टू टर्मिनल 2, जस्ट टाइप CHBT2, so it will, you will shifted to terminal 2. You can log in here with root user and password redhat, and now if you type who,
it will show you the terminal 1 and terminal 2 root user is login, and it's also mentioning the date and time of the login. यहाँ पे आपको जो लॉगिन है टर्मिनल पे किस डेट में किस टाइम में लॉगिन है उसका भी आपको मेंशन रहेगा ये. ओके गाइस, सो थैंक यू. आई थिंक इट विल हेल्प यू, एंड इफ यू गाइज रियली फाइंड इट इज़ हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इसी तरह से आपके पास कोई और चारा नहीं है, आप सिर्फ इसी तरह से मोटिवेट कर सकते हो मुझे, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ. नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा इस लाइनेक्स मशीन का अगर आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड को क्रैक, बाईपास या रीसेट कैसे करते हैं. Okay guys, so keep watching, keep enjoying. Thank you for watching us.